Hi, my name is Puneet Gupta. I am founder and CEO of AstroTalk. You're watching me on Indianness. So I get to ask this question again and again from all my friends how I came into astrology, because I have mocked everyone in my school life, in my college life about astrology, because I never believed in it. So the thing was, I started my career from Nomura, which was an investment bank in Mumbai, and I worked there for 2.5 years, and then I quit my job to start something in the field of Ayurveda. It happens with most startups, it didn't work out well, and I had a rough path for around an year, and I had to go back to Mumbai again, and then I started working with BNP Paribas. But that starting something of my own was always behind my mind. And after working with BNP Paribas for around 7-8 months, I got in touch with a friend who was from IIT Delhi, and we thought of starting an IT services company. And before I could put down my papers again, and I was kind of anxious whether should I resign from that job again, or because the same things were haunting me again and again, like it happened after resigning from Nomura. And meanwhile, while I had typed my resignation letter, a friend came over and asked, why do you look so lost? And I told her the entire thing, like I'm thinking of resigning and everything. And she told me that she also practices astrology and she can help me get to a decision. And as I told you, like I never believed in astrology, so I started mocking her, and she was also my senior. And after a bit of discussion and argument, she was quite adamant that she wanted to help me, and so I gave her my birth details. After that, she checked my chart and told me that your next 2 years are very promising for an IT business company. However, she can see some problem after 2 years. And when I asked, she told me that your partner might leave the organization after 2 years, and which could end up in a struggling phase for an year. Then you will have to pivot your business to another thing, but it will turn out well eventually. So that's what she told me. But as I never believed in astrology, so it was just like it was there in my mind. But I resigned from that job and started a services company named Codiyati. And just like she told me, the 2 years were really good. We scaled up to a team of 45 in no time, and we were doing a business of around $500,000 a year. And it was going really well. And around after 1.5 years of our journey, so my partner came to me and said that he is not enjoying the work. We are just kind of making money, and we are not enjoying the product cycle which we wanted to do. So at that time we decided, okay, let's start some product and shift the entire focus of the organization from services to product. And we started some products, but none of them did well, and eventually he ended up leaving the organization. And when he left, I thought like I could run the organization because it was quite stable. Then I realized that there were a lot of things which were dependent on him, and I started struggling a lot. And then I recalled that astrologer had told me the same thing, that after 2 years he'll resign. And then I reached out to her and asked her ki those things that have happened, and she was kind of happy and sad to know that my partner has left, but she was happy that her prediction came true. And so then she asked me, do you want another prediction or what? So I kind of suggested her, like, let's start an app in the field of astrology, and maybe I'll become your first customer and ask you what's in there in my future. So that is how AstroTalk was built, and the idea got originated. And we launched the first MVP in 2017, and the journey has been really fantastic from there. We struggled for an year to build the product market fit, but after that, from last year, from July, August of 2018, we have been scaling like anything. मेजर चैलेंज एस्ट्रोलॉजी फील्ड में ये था कि
बचपन से मतलब मैंने देखा था कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से घर पे आ जाते थे या रिश्तेदार होते थे, वो आके कुछ भी बता देते थे हाथ देख के कि ऐसा होगा, एंड वो होता नहीं था। तो उसमें था क्या कि लोग ऐसे ही मतलब एमेच्योर होते थे, कुछ भी थोड़ा सा सीख के कुछ भी बताने लग जाते थे, बट इट वुड नॉट टर्न आउट राइट। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट विच आई जस्ट टोल्ड यू, आई रियलाइज लाइक इफ it is not the astrology which was wrong, it was the astrologer who was wrong. He was telling wrong prediction and you know उसकी वजह से हमारा जो फेथ है एस्ट्रोलॉजी में वो टूट रहा था, एंड वही यंगस्टर्स की प्रॉब्लम थी। वो विश्वास ही नहीं कर पाते जब उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि वो कुछ बताता है एंड वो होता नहीं है। तो दैट वाज द मेजर चैलेंज विच वी फेस। So we wanted to have a very qualified team of astrologers. So initially it was very difficult to reach out to those astrologers. So that friend helped me a lot in shortlisting those astrologers. We would have a lot of interviews. We had created a lot of case studies of people about their past life. And अगर वो चीज़ वो बताते थे, अगर 80-90% सही नहीं आता था, we would not recruit anyone. So that was one thing which we did right, I think, while building the organization. Second thing was, it is very important for an online product to make a product which is very user friendly and a consumer can understand it. So for that, what I think went right for us was for the initial 1 year, I did customer support on my own. So I was talking to each and every customer on customer support chat, on call, and I would solve their issues myself and ask them a lot of questions like कि आपको ऐप यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हम उसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप इतना यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या दिक्कत आपको आ रही है, यूज़ नहीं कर रहे हो पहली बार आपको क्या प्रॉब्लम आई, उसके बाद क्या आई। सो दे वर कस्टमर्स हु वर यूजिंग इट लाइक एवरी डे ऑल्सो। तो उनसे जब वो फीडबैक मिलती थी, हम वो कभी सोच भी नहीं सकते हैं, मैं मतलब कभी सोच भी ना पाता ऐसी फीडबैक जो उनसे मिली। तो वी वर्कड ऑन ईच एंड एवरी फीडबैक फ्रॉम अ कस्टमर एंड इट टुक अस अराउंड एन ईयर टू अचीव दैट प्रोडक्ट मार्केट फिट। तो आई थिंक उसके बाद थिंग्स हैव बीन रियली नाइस। सो करंटली वी हैव 350 प्लस एस्ट्रोलॉजर्स ऑन अ पैनल, एंड ये एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा नहीं है कि एक पार्ट से हैं, ये बहुत ही स्मॉल टाउन से भी हैं इंडिया के, बस जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो हमने हमारी रिक्रूटमेंट टीम है जो रीच आउट करती है, इनका पोर्टफोलियो देखती है या लोगों से बात करती है कि उनको प्रोडिक्शन मिला तो कहाँ से अच्छा मिला, तो उन लोगों को रीच आउट करते हैं हम ऑनलाइन, एंड देन उनकी पूरी वेरिफिकेशन करके इंटरव्यू लेके उसके बाद हम ऑनबोर्ड करते हैं। एंड सिर्फ इतना तक नहीं छोड़ते हैं, उसके बाद हमारी एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की भी टीम है जो उनको ट्रेन करती है कि कैसे एस्ट्रोलॉजर ने कस्टमर के साथ बात करनी है। सो वी आर नॉट इनटू a business of just providing astrology services. We understand that people who are coming to our portal, they are suffering in their personal life. तो वहाँ पे एक पर्सनल कनेक्ट बनाना, एक एम्पथी और सिंपथी के साथ जब एस्ट्रोलॉजर बात करता है, तो दैट आई थिंक दैट इज़ one thing which is majorly required in this field. The thing which I like the most about doing this business is a lot of customers come back to us and they tell us that आपने ये प्रेडिक्शन दिया था तो वो बहुत सही आया एंड उनकी बहुत हेल्प हुई। दैट्स व्हेन आई रियली फील कि हाँ कुछ अचीव किया लाइफ में। तो वो है। और एक मेरा बहुत ही अच्छा इंसिडेंट हुआ था, तो ए फ्रेंड इनवाइटेड मी फॉर ए पार्टी। सो उस पार्टी में उसी को जानता था एंड उसके बहुत सारे दोस्त थे, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग एंड सडनली आई वाज टॉकिंग अबाउट सम माय पर्सनल लाइफ एंड that guy suggested me to use AstroTalk and get a prediction from an astrologer, and they didn't know that I was running that organization. So that was that's the time I felt like I've achieved something. About hiring, मैं खुद बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ इसमें। तो कोई भी इंटरव्यू होती है तो ऑन एन एवरेज 10 मिनट लगते हैं मेरे को एक इंटरव्यू में, जितनी भी इंटरव्यूज़ लेता हूँ। लेकिन जो हायर होता है उस पर ऑन एन एवरेज 40 मिनट जाते हैं, बिकॉज आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट दे हैव डन इन लाइफ. इट इज़ नॉट अबाउट द करियर और करियर अचीवमेंट्स, इट इज़ मोर ऑन द लाइन्स ऑफ कि उन्होंने ज़िंदगी में किया क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है, उनकी प्राउड मोमेंट्स क्या हैं, सो दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, ताकि मतलब वी कैन बिल्ड ए फैमिली इन आवर ऑफिस. तो हमारा एक जो कल्चर हमने बनाया हुआ है वेर इन एवरी वन ट्राइज टू हेल्प एवरी वन एल्स, तो वो अचीव हो और किसी में भी मतलब कोई एरोगेंस ना हो. तो दैट इज़ द मेजर थिंग विच वी ट्राई टू फोकस वाइल इवेल्युएटिंग ए कैंडिडेट. और वंस एन एम्प्लॉय इज इंगेज विद अस, तो हम स्टार्टिंग में हमारा एक रूल है कि कोई भी आएगा, चाहे वो टेक में आए, किसी भी डिपार्टमेंट में आए, दे हैव टू वर्क ऑन कस्टमर सपोर्ट फॉर ए वीक.
and understand the kind of business we are doing and the way we treat our customers. And because in the same way we treat our astrologers, we treat our employees, so they understand कि इस तरह से organization चलती है. I think the best thing which we do with the employee engagement is हम उसको पहले दिन ही बता देते हैं कि आपकी एक हफ्ता ट्रेनिंग होगी, उसके बाद we won't tell you what to do. आप यहाँ पे आगे कुछ भी कर सकते हो, हमने अपना काम सिखा दिया, हम स्टार्टअप हैं, आप भी स्टार्टअप चला रहे हो हमारे साथ, तो आपने देखना है कि आपने क्या करना है. तो उससे एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है उनको कि उनको ऐसे नहीं है कि कोई बता रहा है कैसे करना है, तो हम उनको फेल होने का भी मौका देते हैं, गलतियाँ करने का भी मौका देते हैं. जब वो करते हैं उसके बाद उनको सिखाते हैं. हम ऐसे नहीं है कि पहले बताते हैं ये मत करो. तो एक उनको काइंड ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट फील होता है. एंड आई थिंक जब तक ये चीज़ हो सके आई विल बी वेरी हैप्पी कि हर बंदा जो ज्वाइन करता है वो अपने फीडबैक देता रहे एंड हम उनके आइडियाज़ इंप्लीमेंट करते रहें. सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर. As India is growing and the startup culture in India is growing, तो हमारे पास कुछ भी हमें चाहिए वो एक क्लिक ऑफ ए बटन पे मिल जाता है. सब कुछ हमें एक ऐप से मिलने लग गया है और लाइफ बहुत इजी हो गई है उस सेंस में. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की लाइफ में ये है कि रिलेशनशिप के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. इतना कंपटीशन है इंडिया में कि आप जॉब में कभी सेटिस्फाइड फील ही नहीं करते हो. तो वो जो सुकून है ना वो कहीं ना कहीं हमारी सबकी ज़िंदगी में मिसिंग है. और जो एस्ट्रोलॉजी है जो मेरे साथ पर्सनली हुआ, तो वो एक प्रेडिक्शन से जब वो सही आता है या कुछ आपको रेमेडी बताई जाती है कि उसका सोल्यूशन बताया जाता है, तो आपको एक होप देता है, एक सुकून देता है मन में कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, कि आपकी कोई बात सुनने वाला है, उसका कोई उपाय बताया जाता है. तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग कनेक्ट फील कर रहे हैं. एंड इसी का यही कारण है कि हमारा रिपीट रेट 8 से भी ज़्यादा है, जो कि इंडस्ट्री में इतना नहीं होता है किसी का. तो लोग जब उनकी सहायता होती है, उनकी हेल्प होती है, दे कम बैक अगेन एंड अगेन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. एंड ऑब्वियसली दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ हेल्प ऑल्सो फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी द वे आई गॉट. अबाउट द मार्केट साइज ऑफ इंडिया, आई वुड से कि जब हमने स्टार्ट किया था तो इनिशियली हमारा ऐसा था कि जो 40 ईयर्स या उससे अबव एज वाले लोग होंगे वो ज़्यादा बिलीव करते होंगे एस्ट्रोलॉजी में और यंगस्टर्स नहीं करते होंगे. पर जब हमने स्टार्टअप लॉन्च किया हमने रियलाइज़ किया कि यंग क्राउड बहुत ज़्यादा है जो इसमें बिलीव करता है. बिकॉज वो जब रिलेशनशिप ट्रबल में होते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाते. मतलब दे फील कि अब क्या करें, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में वो आपकी सुन नहीं रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, यू एक्चुअली गो आउट फॉर एन एक्सटर्नल हेल्प. कभी आप दोस्त से बात कर लेते थे पहले, अभी दोस्त के पास भी टाइम नहीं है, आप कहाँ जाओगे. तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है. एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास जो मेजर कस्टमर बेस है वो अभी यंगस्टर है, जिनके पास मतलब रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं. एस्ट्रोलॉजी जो है वो सदियों से चलती आ रही है भारत में एंड बहुत सारे बिलीवर्स हैं इसके. लेकिन पिछले कुछ समय में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बहुत सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर्स कुछ प्रेडिक्शन दे देते थे एंड वो सही नहीं आता था. तो इसकी वजह से यूथ का विश्वास उठ रहा था उस पे से. तो इस रीज़न की वजह से लोग अपना इंटरेस्ट खो रहे थे उसमें. बट अभी टेक्नोलॉजी के साथ जो हमने उसको ईजी कर दिया है कि लोग घर बैठे कर सकते हैं. एंड जो टैबू भी है इसके साथ कि यूथ बताना नहीं चाहता है कि वो एस्ट्रोलॉजी यूज़ कर रहा है, बट यूज़ करना चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसको मंदिर तक जाना पड़े, उसको लोग देखें, लोग उनको जज करें. तो जब ये घर से उनको सुविधा मिल रही है कि चैट और कॉल करके वो बात कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर के साथ, तो आई थिंक दैट हैज़ ऑल्सो चेंज दिस इंडस्ट्री. जब से हमने ये स्टार्ट किया है, एक इनिशिएटिव लिया है कि ऑनलाइन आप एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हो, तो लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं. एंड समटाइम्स दे गिव अस फीडबैक ऑल्सो अबाउट द ऐप एंड दे टेल अस कि आई लव दिस ऐप बट आई डोंट लाइक दिस थिंग, इफ यू कुड चेंज इट, बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट ए 1-star रिव्यू ऑन योर ऐप बिकॉज आई लव दिस एप्लीकेशन एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट. तो हमारा विजन ये है कि जो एक एस्ट्रोलॉजी जो एक बहुत ही इंडियन प्रोडक्ट है, जो इस इंडियननेस को हम आगे लेके जाएं. और अभी जैसे बहुत सारे कस्टमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमने अभी एक नया लॉन्च किया कि हम पहला सेशन सबको फ्री देंगे ताकि वो एक बार एस्ट्रोलॉजर से जुड़ के एक प्रेडिक्शन लें और फिर हम उनसे फिर हमारी ऐप आगे भी यूज़ कर सकते हैं. तो हमारा विजन यही है कि अगले 2-3 साल तक हम इसको बहुत प्रमोट करना चाहेंगे. हमारा फोकस मार्केटिंग एंड कस्टमर हैप्पीनेस पे ही रहेगा. Regarding competition, I would say what I am doing is very personal to me. जो मैंने खुद फील किया, मेरे साथ हुआ, और जैसे मैंने कहा कि मैं बिलीव नहीं करता था एस्ट्रोलॉजी में, मेरा बिलीव बना एक सही प्रेडिक्शन से, तो वो बहुत मेरे पर्सनल है. एंड मैं जो चीज़ अब करना चाहता हूँ, मैं आई रियली वॉन्ट दिस थिंग टू फेल्ट बाय अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस एंड उनका भी फ़ायदा हो. जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे, तो आई रियली वॉन्ट कि ये लोगों तक पहुँचे. एंड जब मैं कंपटीशन की बात करता हूँ तो जस्ट बिकॉज आई लव माई क्राफ्ट एंड आई सी लाइक पीपल हु आर
in our competition, they are more after making money. So I don't think they can compete with us on any front because we love what we do and they are after trophies. तो हमारी एक कंप्लायंस टीम है जो हर चीज़ चेक करती है कि एस्ट्रोलॉजर जो बता रहे हैं किस तरह की उनकी गाइडेंस दे रहे हैं, और कस्टमर से फीडबैक लेते हैं हम। तो जैसे ही कस्टमर का एक सेशन कंप्लीट होता है हम उससे फीडबैक लेते हैं, उस पर रिवॉर्ड्स भी होते हैं ताकि वो हमें जो भी जैसा उनको फील हुआ कन्वर्सेशन में तो वो हमें बताएं। तो अगर हमें कहीं भी कुछ फ्लैग आइटम लगती है कि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ गलत बताया तो हम उस पर बहुत अच्छे से एक्शन लेते हैं एंड हम साथ के साथ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को अपने पैनल से निकाल भी देते हैं। तो हमारी पॉलिसी बिल्कुल सिंपल है कि आपने कस्टमर की प्रॉब्लम सुननी है, उसके सोल्यूशन बताने हैं और उनको फालतू के रेमेडीज़ या बहुत एक्सपेंसिव रेमेडीज़ नहीं बताने। तो दान पुण्य का काम हम ज़्यादा बताते हैं। फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स आई वुड लाइक टू से अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को स्टार्ट करें जो आपके बहुत पर्सनल है, जो आप प्रॉब्लम आप खुद फेस कर चुके हो, जो आप सॉल्व करना चाहते हो दिल से। बिकॉज जब आप स्टार्ट करोगे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लोगों से, बिजनेसेस से, कंपटीटर्स से। तो उससे अगर स्ट्रगल करने का, उससे पास करने का, उससे जीतने का तरीका एक ही है कि अगर आप अपने काम को प्यार करते हो, अगर वो करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप जरूर सक्सेसफुल होगे। एंड लव योर पीपल बिकॉज you don't build the business as a founder, you hire people to build the business, and the people who are working with you, they are the one who run your organization and make sure that each and every one of your customer is happy, because आपका जो marketing channel है वो एक कस्टमर से ज़्यादा आपकी मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता। एक हैप्पी कस्टमर जो आपकी मार्केटिंग करेगा, आप कुछ भी कर लो, कोई भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर लो, आप उसको बीट ही नहीं कर सकते कभी भी। आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग दैट लव योर कस्टमर्स, लव एवरीवन हु इज वर्किंग विद यू, एंड दे विल add a lot of value to your business in return. Thank you so much.